Business Morning is brought to you by BSE IPF. Good morning, welcome to Business Morning. My name is Venkatraman. In fact, across the globe, the investors are pretty much looking positive for the couple of trading sessions. There are some indications that the Federal Reserve might go for a gradual phase of an interest rate hike, and that apparently convinced the investors, and then some sort of positivity, optimism is seen. Dollar is also on a defensive mode, and that is also boosting the markets across the world. Asian markets started on a mixed note, but then we have some sort of positive trends coming in there as well. To discuss all these aspects, what impact will it have on the Indian markets, we'll be discussing in our show. And in Hindi with me is Ajay. Hi Ajay, good morning. गुड मॉर्निंग वेंकट। और अगले आधे घंटे के दौरान हम शेयर बाज़ार की चर्चा करेंगे, लेकिन इकॉनमी टुडे में आज चर्चा करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड की और बड़ी आर्थिक मुद्दों पर भी जो खबरें हैं अर्थ जगत से वो भी आपको बताएंगे। आप जानते हैं कि जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है वो आज भी जारी है। कल ये शुरू हुई थी, कल अहम फैसले हुए, अहम मुद्दों पर सहमति बनी और आज कोशिश की जाएगी कि तमाम जो और भी मुद्दे हैं उनको सुलझाने की कोशिश की जाए। तो बड़ी आर्थिक खबरें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं एशियाई बाज़ारों के हाल से। एशियाई बाज़ारों की बात करें तो जापान के बाज़ार निके में शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन हांगकांग के बाज़ार हैंगसेंग अभी खरीदारी के साथ कारोबार कर रहा है। कॉस्पी भी ऊपर है। कोरिया का बाज़ार, चीन के बाज़ार में भी बढ़त दिखाई दे रही है। एसडीएक्स निफ्टी शुरुआत में खरीदारी के साथ सिंगापुर एक्सचेंज पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। शुरुआती रुझान यही कि आज भी बाज़ार बेहतर खुल सकते हैं। Well, let's now have a look at the US markets, how they closed yesterday. Well, that is the story of the US markets. In fact, the Wall Streets have gained almost between 0.4 to 0.85%. Dow Jones up by 99, S&P 500 up by 14, Nasdaq up by 44. As I was telling before, there is some positivity, there's some optimism among the investors, and that has actually driven the US markets, and that we've seen the impact on the Asian markets as well. Well, we have to see how Indian markets will be taking those cues. We have with us Mr. N.C. Maheshwari, a stock analyst, to discuss on these issues and also what impact will it have on the Indian markets. Hello, sir. Good morning. Welcome to our studio. A certain amount of positivity, certain amount of optimism we are seeing in the global markets. Can we attribute the whole reason to the Federal Reserve's indications that they might go for a gradual sort of an interest rate hike rather going it at once? Yeah, immediately the positive cues from the overseas market, which are quite encouraging, have been influenced by the US decision. But the market, I think because of our immediate effect as far as India is concerned, because next week we are seeing the futures closing. So probably it will not be able to sustain that increase in results, because if you see in the morning, the Singapore exchange was almost 40 point plus, which is now almost 5 points, because the issue of the closing will affect more the immediate trend. But overall the market has become quite mature. It is almost nearing 9,000 Nifty and 28,000 Bombay Stock Exchange. So I think all-time high, it's poised for becoming all-time high. And then GST, very positive and cooperative statements which are coming on the political fronts, and the monsoon was quite encouraging. So except this issue of the Pakistan, how it is taken politically, or whether it affects some economical or global financial market, it may affect, because we have seen yesterday the some of the bourses of the Pakistan tanked. So except that, I think the market more or less is very positive, except these 2-3 days which is naturally high volatile because of the closing. Market is going to be very, very good. And certain analysts also feel that there could be resistance level around 8,950 or 60 levels. So do you go with it? I think we are at that time only. Right now the level we are already reached that, and because of the immediate reason is the closing, because next Thursday the future is going to close, and this time it was quite longer period. Normally it has to be 4 weeks, but we came for 5 weeks this time. So to some extent it seems, and then naturally it will follow by October, which is going to be naturally decided by the US election. So US election always naturally both time will have come up with this thing. So market is going to be volatile henceforth. भारतीय बाज़ारों की बात करें तो प्री मार्केट सेशन में S&P BSE सेंसेक्स 38 अंकों पर इस वक्त कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी की बात करें तो वहाँ भी पॉजिटिव खुला है, करीब 13 अंक ऊपर 8,880 के स्तर पर कारोबार करता हुआ बाजार।
शुरुआती कारोबार में किन सेक्टर्स में आप तेज़ी का माहौल देख रहे हैं माहेश्वरी जी, और इतने बढ़े हुए बाज़ार में करना क्या चाहिए अगर कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है और अभी तक वो इस बस को मिस कर गया है? रैली बहुत दिनों से शुरू है लेकिन हो सकता है लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हों। अब क्या करना चाहिए अगर कोई नया निवेश शुरू करना चाह रहे हैं? देखिए, नए निवेश के लिए हम बड़े रिपीटेडली कह रहे हैं कि SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इज़ द राइट थिंग। हर लेवल पे वो 5,000 10,000 रुपये हर महीने ले सकता है, तो उसके ओवर पीरियड ऑफ टाइम बड़ी एवरेज कॉस्ट हो जाएगी, उसकी रिटर्न काफ़ी अच्छी होगी। दैट इज़ द सिस्टम जहाँ उसको मार्केट की ज़्यादा खबर नहीं है, जहाँ मार्केट को ज़्यादा रिस्क को बियर नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ तक है कि मार्केट बढ़ गई है इस लेवल पे, मुझे लगता है इंडेक्स का कोई ज़्यादा रेलिवेंस नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आपको बनानी पड़ेगी। लाइक फॉर एग्जांपल आप किसी भी एक सेक्टर की बात कर सकते हैं। लाइक फॉर सीमेंट, आज सीमेंट के कुछ शेयर अल्ट्राटेक की बात करें तो 4,000 का है। अगर आप दूसरे किसी की बात करें तो 1,600 का है, कोई 400 का है। बट आज सीमेंट सेक्टर में भी आपको लेस देन 10 रुपीज़ पे भी शेयर्स अवेलेबल है। अगर आधना सीमेंट की बात करें तो आज 8 रुपये पे अवेलेबल है। और इतनी बड़ी आप देखिए पूरे साउथ में एक नई कैपिटल बनने जा रही है। अल्टीमेटली जो सीमेंट है, सी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वेरी हाई, तो सूनर और लेटर द जो ऑर्डर्स हैं दैट विल गो ओनली टू दी आंध्रा सीमेंट और नियर बाई एरिया। तो मुझे लगता है कि जो शेयर्स काफ़ी कम है, अगर हम और कुछ इसमें सीमेंट सेक्टर के शेयर्स की बात करें, जो शेयर्स पिछले साल 5 से 10 रुपए के बीच में थे, उसमें से काफ़ी शेयर्स 50 और 60 रुपए के बीच में आ गए। तो ऐसे एक सीमेंट सेक्टर की बात है। दूसरा है केमिकल सेक्टर। थर्ड बड़ा इमर्जिंग, बड़ा इंक्रीजिंग ट्रेंड है विच हम देख रहे हैं, जो है कि डेयरी सेक्टर। डेयरी सेक्टर एज ए कमर्शियल एक्टिविटी इंडिया में कभी भी इसको कॉर्पोरेट लेवल पे नहीं देखा गया, इसको हमेशा स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में देखा गया था। लेकिन पिछले 1-2 साल में आई थिंक जो रिटर्न्स फ्रॉम द डेयरी सेक्टर इज कमिंग। एक तो टैक्सेशन में बहुत बेनिफिट है, गवर्नमेंट की सब्सिडी है, एनकरेजमेंट है, और लोगों को एक चीज़ समझ में आ रही है कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फूड में क्या अंतर है। तो मुझे लगता है दे आर रेडी टू पे द प्रीमियम फॉर ए रियल गुड प्रोडक्ट। तो हम देख रहे हैं कि डेयरी सेक्टर्स में भी बहुत अच्छा मुनाफा लोगों को शेयर्स में मिल सकता है। और नॉर्मल कोर्स में जो हम बात कर रहे हैं, जो काफ़ी हमारा हमेशा स्टेपल रहा है, दैट इज़ द फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स बैंक एज वेल एज द NBFCs। तो इस फाइनेंशियल सेक्टर्स में ख़ासतौर पर NBFCs और डेयरी सेक्टर में स्पेसिफिक शेयर्स जो आपने चुने? I think I would like to avoid the specific shares. And also, sir, how are you looking at when you're talking about cement and all? Like, I just want your focus on specific company, this L&T, because its technology services are also coming in today. In fact, because we've seen how IPO was subscribed actually. So how are you looking at this L&T's this thing overall? I mean, and also with respect to this technology services MW. देखिए, L&T काफ़ी बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है। उसमें कुछ लाइक IT का अलग सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन अलग सेक्टर है। बट जिस तरह से गवर्नमेंट की स्मार्ट सिटीज़ की मूवमेंट आगे बढ़ने वाली है, L&T सबसे बड़ा एक प्रीफर्ड कॉन्ट्रैक्टर है। आज आप जितनी भी अच्छी बड़े सिटीज़ की बात करें, बड़े टावर्स की बात करें, बड़े कॉन्डोम्स की बात करें, सारे में L&T का कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन में रोल है। तो बेसिकली देखा जाए NBCs और L&T 2 या 3 ही है बड़े जिनको कि प्रेस्टीज है और उनको लोग देते हैं। तो मुझे लगता है जो इनका कंस्ट्रक्शन विंग है वो L&T में, उसको काफ़ी मुनाफा आने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम क्या रही कि जो पिछले कुछ सालों में जो इन्होंने बड़े प्रोजेक्ट किए इंफ्रास्ट्रक्चर्स के, उनके सामने इनकी पेमेंट्स कुछ अटक गई। पेमेंट अटक गई, इशू इज़ द लिक्विडिटी, जो कि पूरे इंडस्ट्री में है। NPA का इशू है। तो जब इंडस्ट्री के पास पैसा नहीं है तो कंस्ट्रक्शन वालों को भी पैसा नहीं मिल रहा है। तो उसके चलते हुए हमने देखा कि थोड़ा सा इनके ऊपर दबाव बना हुआ है। बट आने वाले टाइम में आई थिंक L&T इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर और इट इज़ गोइंग टू परफॉर्म। दूसरा सेक्टर जैसे आपने अभी इशू की बात करी, इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस अभी हमने देखा कि अब बिल्कुल लो लेवल पे जितना रेस्पॉन्स नहीं था इनिशियली ICICI के लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर, बट क्लोज होते होते हमने देखा कि ऑलमोस्ट 10 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया। एंड इट इशू हुआ था ऑलमोस्ट 6,000 करोड़। तो 6,000 करोड़ पे अगर 10 टाइम्स सब्सक्राइब हो जाता है, इट मीन्स पब्लिक में आज जो एक डिमांड है, जो हंगर है, एपेटाइट है, दैट इज क्लोज टू 60,000। तो इससे मतलब मार्केट इज ग्रेट विद द मनी, ओनली दे आर वेटिंग फॉर द राइट स्टॉक। So let's slip into a short commercial break, and after the break we'll be coming back with certain other updates and also the details of how Indian markets have opened. Stay tuned, don't go anywhere. When the Sensex is up, you find a smile on every face. I'm Deven Choksi, member of PSU since last 33 years. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. मैं हूं सूर्यदेव। एक बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा। अब तुम आज के NAV पर म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो।
मेरे ढलने से पहले का एनएवी। BSE Star Mutual Fund Platform. Punctual like the sun. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Get listed on the BSE SME platform and turn your small company into a big one. स्वागत है, आप देख रहे हैं बिजनेस मॉर्निंग और देख लेते हैं कि भारतीय बाजार खुले कैसे हैं। काफ़ी फ्लैट कारोबार दिख रहा है इस वक्त। और बात करें अगर S&P BSE सेंसेक्स की तो गिरावट के साथ शुरुआत हुई है। आज 45 अंक नीचे 28,727 के स्तर पर कारोबार की शुरुआत हुई है। देखते हैं कि कहां पर गिरावट और कहां पर खरीदारी का माहौल दिख रहा है। एक्सिस बैंक में गिरावट है 2% से ज़्यादा। इन्फोसिस भी करीब 0.25% नीचे कारोबार कर रहा है। गेल आधे फीसदी, एशियन पेंट्स और ल्यूपिन पर भी दबाव आधे फीसदी नीचे इस वक्त शुरुआती कारोबार में कारोबार करते नजर आ रहे हैं। जहां पर खरीदारी का माहौल है उसमें डॉक्टर रेड्डीज, रिलायंस, लार्सन एंड ट्यूब्रो, बजाज ऑटो और महिंद्रा एंड महिंद्रा प्रमुख कंपनियां हैं। निफ्टी की बात करें तो बिल्कुल फ्लैट कारोबार वहां पर दिखाई दे रहा है। 44 अंक नीचे अभी भी इंडेक्स S&P BSE सेंसेक्स कारोबार करता हुआ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हर जगत की जो बड़ी खबरें हैं वो भी देख लेते हैं। आइए निगाह डालते हैं आज की टॉप लाइन्स पर। राज्यों को GST से होने वाले नुकसान की भरपाई और मॉडल GST कानून को लेकर आज की बैठक में हो सकता है अहम फैसला। 22 नवंबर तक सभी मुद्दे सुलझ जाने की उम्मीद। GST काउंसिल में 1 अप्रैल 2017 से GST लागू करने पर बनी आम सहमति। By and large, the meeting has been conducted and has gone on in a true federal spirit, and therefore what we have seen today is not any form of division on political lines, but obviously people have interest of their own governments and revenues and are entitled to that viewpoint, and therefore out of that sense a consensus will finally emerge. इस साल खरीफ की फसल का हो सकता है रिकॉर्ड उत्पादन। सरकार के अनुमान के मुताबिक 135 मिलियन टन होगा खाद्यान्न उत्पादन। चावल के 93 मिलियन टन और दालों के 8 मिलियन टन से अधिक के उत्पादन का अनुमान। ब्याज दरों को तय करने के लिए बनी मॉनेटरी पॉलिसी समिति में सरकार ने तय की अपने 3 सदस्य। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के चेतन घाटी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पामी दुआ और IIM अहमदाबाद के RS ढोलकिया पहली समिति का बनेंगे हिस्सा। साल 2019 तक देश में फूड प्रोसेसिंग उद्योग को दोगुना करने का लक्ष्य। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला देश, लेकिन प्रोसेसिंग लेवल है केवल 10%। मार्च 2017 में दिल्ली में होगा वर्ल्ड फूड समिट। और स्वच्छ भारत और कनेक्टिविटी से सुधरेगी देश के टूरिज्म की तस्वीर। नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी से पर्यटन क्षेत्र को होगा फायदा। अभी दुनिया के पर्यटन बाजार में भारत की भागीदारी केवल 1%। इनक्रेडिबल इंडिया टूरिज्म समिट का आज आखिरी दिन। Well, those are the top lines, and we have with us Mr. N.C. Maheshwari, our stock analyst on the markets. Sir, let's now focus on this rupee-dollar equation as well, which has been impacting, like the markets too. We've been getting so much the continuous inflow of foreign institutional investors in both local equity and bond markets. That is impacting rupee, and then we've seen rupee closing against dollar at a much more higher level, almost two weeks higher, we can say. And the dollar is on a defensive mode against various other currencies as well. Do you really think that this sort of a situation will continue because of the developments there with respect to Federal Reserve in United States? I think there are 3 indicators which you have to look in for understanding the rupee-dollar parity. The first is the
current account. And I think last few years it is the first time that India is sitting very comfortable as far as the current account part is concerned. It used to be quite deficit, and maybe in the time to come it may be deficit may narrow, or maybe it may be positive. But the real culprit is the trade deficit. I think so far we are not able to give any momentum to the export. So our export are able to keep pace with the economy, or somehow the trade deficit, which used to be very minuscule at one time, but still it is galloping. So I think how this difference is going to be fulfilled, that is the point to be seen. Right now the FFI money, the FDI money, this is taking care of the gap in the trade deficit. So our overall current account, overall the receipts of the dollar in India is much more than what we are importing, than paying the price, but it has come in sort of FI or FDI money, which is a short-term money. So moment this money start going back, then it may affect the whole equation. Till then, I think we are sitting very pretty and very good. I think government also is overall is discussing and deliberating on a total long-term planning, whether strengthening of rupee vis-a-vis dollar will be a key strategy, but it is going to naturally it will give us a lot of impetuses to import technology. Import will be cheaper, technology can come, sharing will come, but then it may affect something on our export front, because then exports will become costly, so they will got a negative. But if we take a path of slowly devaluation of the rupee, then it means our export will be naturally competitive world across, but then the cost of technology, cost of the ECB, if you see the last time news this year, the corporate borrowings are almost high. This year itself, the total borrowings have increased almost 3 times. So if we are going to devalue the rupee, our total liability is going to gallop. Total liability is going to increase like anything. So I think a very balanced view has to be taken up. Of course, our stated policy is that we have left it to the market policies to deal, but on a longer view, we have to take a view that ultimately we want a slower devaluation or slower appreciation. World over, the dollar is losing relevance. So it means if we go natural ally, so then it should be in a process of appreciation. Right. And then in brief, before we take some other story, like we're talking about exports, I mean the government is doing it pretty much in its own way to boost the exports as well. In fact, in the latest decision as well, Commerce Ministry has announced exports, adding some 2,900 products to the merchandise exports from the India scheme as well. Like things are actually happening, and then the rupee is also stabilizing around that desired figure around between 65 to 67. But still, we're not seeing that sort of a boost in the export sector. I think the issues are both. As far as macro, and inland, overseas. The overseas global economics, that every country is under trouble. Yes. Whole European, like Brexit, then other Europeans. There's a weaker demand. Yeah, so weaker demand, and they are cutting like for software, which used to be their key element of income raising as far as European countries concerned. Because of the Brexit problem, there are other problems. Most of our software companies are feeling a pressure. The same case is the renovation, because there is no new demand in European countries, and there is no new demand from the Japanese also, because their population is not young, the population is old, so they already have vehicles, they already have the housing, they already have all the facilities. So I think that it will take some time. Right. Right, absolutely. We'll be continuing with the discussion, sir, but before that, let's have a look at some other important update. The infrastructure, as we all know, is a key aspect for the economic growth of a country. And Finance Minister, while addressing a seminar on best practices in public-private partnership and long-term infrastructure financing in the national capital, said the greatest challenge of future decades is how to fill the infrastructure deficit and how to fund it. Finance Minister Arun Jaitley said infusing into infrastructure will remain a continuous challenge if India has to grow at 7%. Finance Minister was addressing a BRICS seminar on best practices in public-private partnership and long-term infrastructure financing in the national capital. He said the infrastructure gaps must be plugged, which is a challenge. He also said various models of public-private partnership will help in boosting the infrastructure growth. If India is to grow and grow faster than its current rate of 7.5% or thereabout, infrastructure is really the key. And I think one of the great potentials in building up and continuing to build up the growth story would be that we continue to fill up these infrastructure gaps.
13,000 public-private partnership projects are at various stages of implementation in various sectors currently. Economic Affairs Secretary Shaktikanta Das said India is attracting investments with respect to infrastructure in various sectors like power, and almost all the problems in highway sector are sorted out. He also said government is getting into agreements with various countries and institutions to boost the infrastructure growth. We have already interacted with, we already MOUs with the idea of, that is Abu Dhabi Investment Authority, with Qatar Investment Authority. We have also with an agreement with the MOU with the Rusnano. We have entered into MOU some kind of an understanding with the government of the UK Treasury and with US Treasury also. And there are now proposals, 2-3 other proposals to be MOUs to be signed with other countries. So there is a lot of investment appetite, and it is just I think a matter of weeks or maybe 1 or 2 months at best, where we will see that actual activities are taking off. As Finance Minister said, government has the primary responsibility of infrastructure funding and is attempting various models to develop infrastructure in the country. Infrastructure is a key for the economic growth of any country. And for countries like India, plugging the gaps and addressing the infrastructure deficits is the most important task, as Finance Minister Arun Jaitley said. And public-private partnership will play a prominent role in the same. With camera person Sanjay Jaina, this is Venkat Raman reporting for DD News, New Delhi. So that is about the infrastructure, what Finance Minister in fact said that there are certain challenges, and in fact Government of India is actually working on that. We are running out of time. Sir, before we wind it up, any specific final comments on the today's market and the trends that would be continuing in the week? I think trends are very encouraging, and for the new investor, I repeat, the SIP is the best model, and the profit churning. I think my experience is always that people make investment, they get good price, but they not exit at the right time. So when we talk of the investment, investing as well as exiting, both are equal force. We must know when it is the right time to book the profit, and I think when the market is close to 9,000 Nifty or 28,000, part of the investment must be sold, and we should realize the gain. Right. Thank you very much, Mr. N.C. Maheshwari, for coming to our studio and giving your analysis, sir. Well, that is N.C. Maheshwari. He gave analysis on the stock markets. And before we take a short break and then start our show Economy Today, let's have a look at the markets. Indian markets, BSE Sensex is trading around 28,735, down by 38 points. The trends which we have seen in the pre-markets and also in the initial stage when the markets have opened. Well, that is the scenario. Let's now slip into a short break. And after the break, we'll be coming back with this special show Economy Today, and we'll be discussing about that topic as well after the break. Stay tuned, don't go anywhere. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. मैं हूं सूर्यदेव, एक बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा। अब तुम आज के NAV पर म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, मेरे ढलने से पहले का NAV। BSE Star Mutual Fund Platform, punctual like the sun. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. The new mobile app from BSE. Now take BSE wherever you go. When the Sensex is up, you find a smile on every face. I'm Deven Choksi, member of BSE since last 33 years. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Welcome back to Business Morning Economy Today, and then today's topic will be explained by Ajay. इकोनॉमी टुडे यानी आपकी ज़िंदगी से जुड़े हर आर्थिक मुद्दों की पड़ताल करता हमारा नया कार्यक्रम। सीधे आपसे जुड़ते हुए आज का मुद्दा है किसान क्रेडिट कार्ड। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, बहुत ही आसान से तरीके हैं। ट्विटर के जरिए सवाल कीजिए, #Economy Today का इस्तेमाल करते हुए अपना सवाल कीजिए।
ध्यान रहे कि आज के प्रोग्राम में आपका सवाल जो है वो क्रेडिट कार्ड यानी किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। जनरल क्रेडिट कार्ड के सवाल प्लीज़ इस कार्यक्रम में मत भेजिए। और मेल के जरिए अगर आप हमें सवाल करना चाहते हैं economytoday.ddnews@gmail.com का इस्तेमाल कीजिए। आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भास्कर पंत साहब, जो कि नाबार्ड से जुड़े हैं। डीजी, हमें बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम इकोनॉमी टुडे की। किसान को बिना किसी ज़्यादा कागजी और बिना झमेले के आसानी से लोन देने की योजना है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान ज़रूरत पड़ने पर साहूकार के पास पैसे लेने न जाएं, वो कर्ज, ब्याज यानी सूद और मूल के चक्कर में न फंसें। इसी से बचने के लिए सरकार ये योजना लेकर के आई थी। अब योजना को आए काफ़ी वक्त बीत गया है और देखते हैं कि इसके ज़रिए कैसे किसानों को आर्थिक मदद पहुँची है। किसानों को जरूरत के समय आसानी से पैसे मुहैया कराने की स्कीम है किसान क्रेडिट कार्ड। इस योजना के जरिए साहूकार के ऊंचे ब्याज दरों और कर्ज के फेरे से किसानों को छुटकारा दिलाने की कवायद है। इसके आने के बाद किसानों को आसानी से कर्ज उपलब्ध कराने की कमान साहूकारों से निकलकर सरकार और सार्वजनिक बैंक के पास पहुंच चुकी है। वित्तीय समावेशन पहुंचाने के मकसद से केसीसी 1998 में देश में लॉन्च हुई और ये योजना पूरे देश में सभी किसानों के लिए लागू है। सभी वाणिज्यिक बैंक, सार्वजनिक, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसे कार्यान्वित कर रहे हैं। छोटे किसान, सीमांत किसान, पट्टेदार और किराएदार किसान सहित सभी किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी करने का प्रावधान है। केसीसी धारक किसान की अगर असमय दुर्घटनावश मृत्यु होने पर भी कर्ज के बोझ से परिवार वालों को डरने की जरूरत नहीं है। इसके तहत केसीसी धारक का दुर्घटना बीमा भी किया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कोई भी किसान आवेदन कर सकता है। कुछ जरूरी कागजों और जांच के बाद क्रेडिट कार्ड बन जाता है। इसके जरिए खेती के लिए उपलब्ध जमीन और किसान के क्रेडिट इतिहास व जिला स्तरीय तकनीकी समिति की तय की गई सीमा के मुताबिक बैंक किसान को ऋण देता है। इसमें किसानों को अलग अलग फसल के लिए ऋण आवेदन करने का झंझट भी नहीं है। केसीसी के तहत कृषि उपकरणों और घरेलू जरूरत के लिए ऋण आवेदन कर सकता है। केसीसी के मुताबिक 1 हेक्टेयर खेती योग्य जमीन वाले किसान को 1,45,000 का ऋण बैंक के जरिए मिल सकता है। हर एक साल ऋण की ये सीमा 10% की दर से बढ़ जाएगी और 5वें साल में किसान को अल्पावधि ऋण की सीमा पहले साल लिए गए ऋण के तकरीबन 150 गुना तक हो सकती है। साथ ही किसान को एटीएम सह डेबिट कार्ड जारी करने का भी प्रावधान है। इसके जरिए किसान सीधे किसी भी एटीएम टर्मिनल से जरूरत के मुताबिक स्वीकृत ऋण का पैसा निकाल सकता है। इस योजना में किसान के लिए सरकार ने 3 लाख की राशि तक किसी भी प्रोसेसिंग शुल्क का प्रावधान नहीं रखा है। एक किसान क्रेडिट कार्ड 5 सालों के लिए वैध रहता है। किसान जरूरत के मुताबिक बैंक से फसली ऋण ले सकता है। इस योजना के तहत वित्तीय मदद देकर किसान को स्वावलंबी बनाने का प्रयास भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पंत साहब, इस कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश करते हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाया जाए और वो भी हमसे इंटरेक्ट करें अगर कुछ जानना चाहते हैं तो, इसलिए ये ओपन इंटरेक्शन फोरम रखा गया है। सबसे पहले तो ये कि काफ़ी पुरानी योजना हो चुकी है, अभी तक का एक्सपीरियंस क्या रहा है, क्या इसको आप सफल मानते हैं? हाँ, मैं तो उसको बिल्कुल ही सफल मानूंगा। जैसे कि आपने भी कहा था कि 1998-99 में तब के तत्कालीन जो हमारे वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा जी ने, उन्होंने एक अपने बजट में उन्होंने एक किसान क्रेडिट कार्ड शुरू होने के लिए उन्होंने एक पहल की थी और नाबार्ड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक ऐसी पॉलिसी बनाने के लिए कहा था जिसके तहत किसानों को आसानी से ऋण मिल सके। और उसके बाद फिर उसमें कई पड़ाव आए और कई चेंजेस आए, जैसे कि हमारी इकॉनमी भी ग्रो करती रही और जिस तरह से वहाँ के लोगों की ज़रूरतें भी वहाँ से शुरू होती रही। तो उसके बाद से अब जो किसान क्रेडिट कार्ड है, जैसे कि आपकी रिपोर्ट भी कह रही थी कि तकरीबन 5 साल की एक उसमें लिमिट बना दी जाती है जिसके तहत कोई भी किसान हो, उनके पास खेती करने के लिए ज़मीन हो, पट्टेदार किसान भी हो, तो वो भी अब बैंकों से इसके माध्यम से ऋण ले सकता है। इसमें जो जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, क्या इसमें क्रेडिट कार्ड बनने के बाद आप सीधे जा करके जिस तरह से आम क्रेडिट कार्ड है उससे आप पैसे निकालते हैं वैसे आप पैसे निकाल सकते हैं? ख़ासतौर पर इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो क्या वो जो शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन जो 4% में मिल रहा है उस पर ये मिल पा रहा है कर्ज? हाँ, देखिए, जहाँ तक किसान क्रेडिट कार्ड
एक तरह का मतलब क्रेडिट कार्ड नहीं कहेंगे, एक तरह से इसको डेबिट कार्ड है ये। और जब ये स्कीम शुरू हुई थी उसके बाद जो चेंजेस आए, उसके बाद उन्होंने जब 5 साल के लिए उन्होंने एक ऋण सीमा इसके लिए बनाई, तब एक तरह का इनको प्लास्टिक एक पासबुक और एक तरह का कार्ड दिया जाता था, लेकिन उससे एटीएम से पैसा नहीं निकाला जाता। लेकिन 2013 के बाद एक समिति की भारत सरकार ने गठन की थी और उसके बाद उनके दिशा निर्देशों के अनुसार इस कार्ड को एक तरह से रुपए केसीसी में और एटीएम कार्ड में तब्दील किया जाए, ऐसे एक उनके दिशा निर्देश निकले। और तब से ये प्रयास रह रहे हैं नाबार्ड के और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भी कि वित्तीय समावेशन के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा किसान क्रेडिट कार्ड को रुपए केसीसी में कन्वर्ट किया जाए। एक बार जब ये रुपए केसीसी में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद से वो एटीएम से, जैसे कि बाकी डेबिट कार्ड होते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड होते हैं, वैसे आप पैसा निकाल सकेंगे। इस बार इस साल के जो लक्ष्य है वो 8.5 लाख 9 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है किसानों को देने का। उसमें आपको कितना लगता है, कितना परसेंटेज इस कार्ड के ज़रिए होता है और कितना डायरेक्टली लोग जाते हैं बैंकों में? कुछ देखिए, ये तो एस्टिमेट लगाना शायद अभी पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि जितने भी अभी तक हमारे केसीसी कार्ड अकाउंट्स हैं जो इशू हुए हैं, उसमें से तकरीबन मान के चलिए सिर्फ 32% ही 32 से 35% ही वो रुपए केसीसी में तब्दील हो सके हैं। ठीक है। जिसमें से 72% जो है तकरीबन वाणिज्य बैंकों हैं, पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक्स। 36% जो है वो ग्रामीण बैंकों का है, बाकी जो है वो कोऑपरेटिव बैंक है। मेरा मानना यह है कि एक बार कोऑपरेटिव बैंक, खासकर सोसाइटीज़, पब्लिक एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो कि जिनकी तादाद ऑलमोस्ट 90,000 है, और जो बिल्कुल सीधे ही सोसाइटीज़ जो हैं वो किसानों से और ग्रामीण लोगों से जुड़ी हुई हैं, एक बार जब उनका वो डिजिटल फॉर्म में आ जाएंगे तो उससे और ज़्यादा किसान जो है से लाभान्वित हो सकेंगे रुपए किसान क्रेडिट कार्ड के लिए। चलिए सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, देखते हैं कि हमारा पहला सवाल क्या है इस कार्यक्रम में। और जीमेल और ट्विटर दोनों ही ज़रिए हमारे सवाल आ रहे हैं। सबसे पहले शायद राजेश कुमार जी हमसे कुछ जानना चाह रहे हैं। आइए देखते हैं उनका पहला सवाल जीमेल के ज़रिए क्या है, और ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द टाइम बाउंड पीरियड टू रिटर्न द लोन एंड हाउ मच लोन अमाउंट एंड रेट, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट रेट मे बी कैन बी टेकन अंडर केसीसी स्कीम। राजेश कुमार साहब। See, when you're talking of a rate of return, the amount of loan and the rate of interest that is to be levied, as you may be knowing, under interest subvention, a crop loan, which is agriculture production loan also, up to an amount of rupees, let's say 3 lakhs, which is fixed by Government of India, is available at 7%. Out of which, out of the 7%, the loan that is given by the banks to the borrowers, 2% is returned to the borrower, to the bank, saying that by the government that it should be, some kind of subvented interest. Yes. And beyond that, even a farmer who returns the money in time, he gets another 3%. So in effect, it's almost at 4% that a farmer can take a loan up to 3 lakhs. But that is only for production credit. There are two form of loans, which are advanced by the banks. One is a production credit, and other is an agriculture term loan, which really results in a capital formation, and which is important because unless the capital formation in agriculture takes place, perhaps agriculture would not grow. And for that to happen, and for the rate of interest that is levied by the bank, of course, it varies from a bank to bank, and depending upon the kind of loan that a farmer or a borrower has taken. That's how it matters. Right. But well, we have another question as well, sir. We're getting questions from Twitter as well. Let's have a look at that question on Twitter. If I'm not wrong, the Twitter question is by Shailendra. Let's have a look at that question. It's by Shailendra Singh, and the question is government to work towards making it interest-free so maximum farmers can avail when needed? That's I think it's an utopian word. To talk of an interest-free, well, the government is trying this level best to provide loan at a very nominal rate of interest. True. But the banks have their own administrative costs. They also have to function. Banks are they use taxpayers' money also. So to provide interest-free loan, somebody would have to pay, and this would maybe increase the budget deficit of the government. So I think it's to talk of interest-free loan perhaps may not be there. Of course, it's a government which has to take a decision. नहीं, सही बात है पंत साहब, लेकिन इसका जो आप उस क्रेडिट कार्ड से पैसा मिलता है आपको, इसका क्या इस्तेमाल भी पहले से निर्धारित होता है कि आप इसी चीज़ के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर कोई इसके अलावा किसी और मद में इसका इस्तेमाल करता है तो फिर क्या हो सकता है? देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, वो
जो लोन है वो सिर्फ खेती के लिए होना चाहिए, क्योंकि अभी भी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो कि बैंकों से मिलता है, और उसकी जो अगर हम उसका परसेंटेज देखें पूरे एग्रीकल्चर हाउस होल्ड 9 करोड़ के करीब हैं, तो उसमें जो लघु और सीमांत किसान है जो कि मतलब 85% हैं पूरे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, उनको सिर्फ अभी तक 15% ही इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिल पाया है। बाकी मतलब मान के चलिए कि वो मनी लेंडर्स या उनसे लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हमें बैंक से जोड़ना है। तो अगर उनको जोड़ने के लिए तो हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी, लेकिन उसको हम इंटरेस्ट फ्री अगर कर देंगे तो फिर बैंकों के पास भी कहाँ से पैसा आएगा। सही बात। तो इसीलिए आई थिंक इट्स, लेकिन किसी और चीज़ के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नहीं, वो सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए ही करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि रविंद्र क्या जानना चाहते हैं। आइए नज़र डालते हैं अगले ट्वीट पर, और ये है रविंद्र शर्मा। डेट स्वैप कितने का मिल सकता है और इससे क्या 6 किश्तों में 3 साल में चुकाना ज़रूरी है, और 3 लाख तक क्या है जो 7% का ब्याज, अगर उससे ऊपर कोई लेना चाहता है तो फिर कितना इंटरेस्ट रेट होगा? 3 लाख तक तो सिर्फ 7% ही मिलेगा, और 3 लाख के ऊपर जितना होगा वो तो फिर बैंक की अपनी जितनी उनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली वो उसमें। और जहाँ तक डेट स्वैप है तो उसमें लोन लेके किसान उसमें मनी लेंडर्स को कर सकते हैं। अच्छा, वो प्रावधान वापस कर सकते हैं। हाँ, पर वो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से नहीं होगा, वो टर्म लोन के माध्यम से होगा, और टर्म लोन का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो आपके और बैंक के बीच में नेगोशिएबल होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अतुल क्या जानना चाहते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं उनके सवाल को, और फिर जवाब के लिए पंत साहब के पास चलेंगे। और इन्होंने ये समझना चाहा है कि इन्होंने KCC करा रखी है 4 साल से, सारे पैसे निकाल लिए हैं, बैंक गया तो उसका ब्याज जो है वो 40,000 रुपये हो गया है। ये बिहार के रहने वाले हैं। की समस्या कुछ समझ पा रहे हैं आप? ये तो एक्चुअली इसमें समझ नहीं आ रहा, या तो उन्होंने क्योंकि KCC क्या एक तरह से कैश क्रेडिट लिमिट है, 12 महीने की होती है ना, उसमें किसान क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस करने का एक सबसे पहले रीज़न यही था कि किसान जितनी बार जा सकें बैंक से, कोई उनको लोन प्रोसीजर्स में झमेले में ना पड़ना पड़े और सीधा वहाँ से लोन ले सकें। अब हो सकता है कि उनकी उन्होंने आउटस्टैंडिंग जो है काफ़ी ज़्यादा हुई, और जिसमें कि उन्होंने इंटरेस्ट वापस नहीं किया हो, तो ये तो बैंक एक्चुअली इसमें ज़्यादा डिटेल जब तक पता नहीं चलेगी कि उनको निरंतर उन्होंने पैसा अकाउंट में रखा है कि नहीं, तो मेरे ख्याल से कहना एक बहुत ही मिसनॉमर है पंत साहब गाँव में, और ख़ास तौर पर जो लोग समझते नहीं हैं स्कीम्स को, कि एक बार अगर आपने किसान खेती के लिए कर्ज ले लिया तो शायद एक संभावना बनती है कि उसे माफ़ है, और इसलिए बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं गांव में जो लोग इसका ठीक से इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो कुछ और भी सवाल, और किसान क्रेडिट कार्ड अगर आप पहली बार खोलना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर्स हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए ये खास कार्यक्रम। Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Welcome back to Business Morning and the economy. Today we're talking about the Kisan Credit Card. Before we take a question, sir, I have a small question. Now, when we talk about this Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, how are you looking? I mean, these are actually linked to the banks, and then the banks have been directed to deduct the
premium amount of crop insurance from the crop loan accounts of the farmers who have this Kisan credit card. That's the whole system. Yes. How are you thinking? I mean, do you really think that the implementation of this scheme from the banks, is it really going according to the expectations? Well, agriculture crop insurance has been there for quite some time, and the whole scheme, there was a problem because there were not many farmers who were actually getting the benefit because they were not really taking getting the crops insured. So the new scheme, which is in the new avatar, which is called Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, which is now going to be implemented from Rabi 2016. It really focuses on bringing more and more farmers under the crop insurance scheme. Right. So whatever were the loopholes, the increase in the high cost of the premium, that has been taken care of in the new scheme. Now, as a result of which, now the insurance companies would be charged, the premium would be almost 1.5% for the Kharif crop as well as 2% for the Rabi crop, and all commercial crops such as the horticulture crop. The premium would be charged at almost 5%. So, keeping at the low premium rates that have been, announced by the government, as also features which are far better than what they were earlier. I feel that more and more farmers are going to be taken into account when this scheme rolls out. तो पंत साहब, क्या ये केसीसी के साथ इस फसल बीमा योजना को जोड़ने की कोई तैयारी चल रही है? हाँ जी, क्योंकि जितने भी केसीसी से लोन जितने भी किसान लेंगे तो उनको कम से कम उन किसानों का तो 100% जो है फसल बीमा योजना से जुड़ना तय है, और नॉन लोनी फार्मर्स जितने हैं उनको हम किस तरह से आकर्षित कर सकते हैं, शायद जब वो उनसे जुड़ेंगे तो ये जो, क्योंकि फसल बीमा जो है जितना ज़्यादा इसका स्प्रेड होगा उतना ज़्यादा ये योजना जो है ज़्यादा सफल होगी, उसका बर्डन जो है प्रीमियम का वो भी कम आएगा। हाँ। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं कि क्या है अगला सवाल, और ये शायद एमजी गोयल साहब ट्विटर के ज़रिए पूछना चाह रहे हैं। Manjunath Reddy, how to avail Kisan credit card? Banks in rural areas do not provide any information. Information की प्रॉब्लम है, जिसकी कोशिश हम कर रहे हैं इस इन्फॉर्मेशन गैप को ब्रिज करने की और आप तक पहुंचने की लगातार, लेकिन नाबार्ड भी शायद अपनी तरफ से कुछ न कुछ कोशिश ज़रूर करता है। पंत साहब देखिए, नाबार्ड जो है लगातार निरंतर, जब से, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड का रचयिता नाबार्ड ही था, और उसके बाद उसमें जितनी भी चेंजेस आए, नाबार्ड अपने माध्यम से बैंकों से भी कैंप्स लगाता है, सेंसिटाइजेशन अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करता है, जिसके माध्यम से लोगों को, खासकर किसानों को बताया जाता है किस तरह से किसान क्रेडिट कार्ड से वो बैंकों से ऋण ले सकते हैं। कोई हेल्पलाइन नंबर या फिर लोकल नंबर जो आप जिससे डायरेक्टली लोग जाके आपसे संपर्क कर पाएँ वहाँ पर रूरल एरियाज़ में? हमारे देखिए 440 के करीब हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और DDM हैं, डिस्ट्रिक्ट जिला विकास प्रबंधक कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर्स, और वो तकरीबन ऑलमोस्ट वी ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, तो कम से कम उनसे तो वो जुड़ ही सकते हैं हर एक ज़िले में, और उनके कोई भी जिला अधिकारी या किसी भी ज़िले के जो भी उनकी इंफॉर्मेशन ब्यूरो होगा उसमें हमारे फ़ोन नंबर्स अवेलेबल हैं DDMs के, अन्यथा वो नाबार्ड के भी हमारे रीजनल ऑफिसेस हैं, उससे भी संपर्क करके वो DDMs के नंबर ले सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमी टुडे में आज किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ। ये भी ट्विटर के ज़रिए, ये बड़ी बात है कि ट्विटर के ज़रिए बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। इज़ देयर एनी मिनिमम लैंड रिक्वायर्ड फॉर द केसीसी? अनिमेश आंचलिया जानना चाह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जहाँ तक इनफैक्ट यहाँ पे तो जिन लैंड होल्डर्स हैं, खासकर स्मॉलर मार्जिनल फार्मर्स, क्योंकि हो क्या रहा है, हमारी लैंड जो है वो ज़्यादा फ्रैगमेंट होती जा रही है। अब हमारे जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जैसे मैंने कहा 85% है, उनकी जो लैंड होल्डिंग है ऑलमोस्ट 1.15 के करीब हेक्टेयर्स के करीब लैंड है। इसके सिवाय भी जितने हमारे ओरल टेनेंट फार्मर्स हैं, जिनके अपने मतलब जो पट्टेदार, जिनके पट्टे नहीं हैं उनके नाम पे, और जो कि दूसरों की लैंड में खेती करते हैं, उनको भी एक तरह से हम समूह बना के, JLGs बना के, उनको भी बैंकों से जोड़ के उनको KCC के लोन से लाभान्वित किया जा रहा। तो मतलब कहना यह है कि लैंड होनी ज़रूरी है, पर कितनी मिनिमम लैंड हो इसका इसमें कोई वो नहीं है। पंत साहब, एक चीज़, नया ट्रेंड जो आपने कोऑपरेटिव की बात की थी शुरुआत में, और एक नया ट्रेंड उभर रहा है फार्मर प्रोड्यूसर जो कंपनीज़ हैं, जिसको आप FPOs बोलते हैं, फार्मर FPOs। तो उस तरह की एंटिटीज़ को भी क्या इसका फ़ायदा मिलेगा और किस तरह से मिलेगा? अगर देखिए, FPOs को तो फ़ायदा मिलेगा। FPOs की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि
अगर हम छोटे और लघु किसान की बात करें तो जो उनकी जो पैदावार होती है, जो प्रोडक्शन है, वो एक तो बहुत कम होता है, वो खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो बच जाता है तो उसमें वो बेचने के लिए मार्केट के उनके पास नहीं होता। इसीलिए अगर फार्मर्स एग्रीगेट होंगे, नंबर ऑफ फार्मर्स जैसे मान के एक उनका कोई समूह होता है, तो एक तो पैदावार उनके पास जो उनका हार्वेस्ट होगा वो उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी। दूसरा, वो जब मार्केट को अप्रोच करेंगे तो जब वो ग्रुप में अप्रोच करेंगे तो निश्चित तौर से उनको जो कॉस्ट मिलेगी, जो उनको सेल प्राइस मिलेगा वो ज़्यादा बढ़िया होगी। और कॉस्ट भी, जैसे इनपुट्स हैं, सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, जो वो लेंगे तो ऑब्वियसली वो क्योंकि मार्केट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव, उसमें जो उनको ठीक प्राइस लगेगा तो उससे वो ले सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर 50 फार्मर से मान लीजिए, उन्होंने मिलकर के लैंड होल्डिंग एक FPO बनाया, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको क्या 50 लोगों को जितनी लिमिट है एक साथ ले सकते हैं? क्या कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? हाँ, वो तो एक साथ भी ले सकते हैं या फिर अलग अलग भी ले सकते हैं। अच्छा, डिपेंड करता है। पर उसमें हो सकता है कि अगर वो जब आप FPO की बात कर रहे हैं तो उसमें FPOs में एक माध्यम जो है वो हमारा वैल्यू चेन के लिए भी से भी जुड़ जाता है। तो खाली वो मेरे ख्याल से प्रोडक्शन के लिए ही नहीं लेंगे, हो सकता है कि वो पूरे वैल्यू चेन के लिए, उसमें हार्वेस्टिंग के लिए भी लें, उसमें प्रोसेसिंग के लिए भी, क्योंकि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जैसे हमारे इंडिया में जितना भी, खासकर अगर हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को लें तो ऑलमोस्ट 25% गोज वेस्ट बिकॉज विद लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज एज वेल एज प्रोसेसिंग। FPOs कैन रियली प्ले अ वेरी मेजर रोल ओवर हियर. Right, sir. Let's slip into a short break, sir, and after the break we'll be getting more questions on Twitter as well. So without any delay, let's slip. मुझे लगता है ब्रेक पे नहीं, वेंकट, हमें सवाल लेने पड़ेंगे, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है इस कार्यक्रम में। सचिन तेंदुलकर, महेश दिमले पाटिल, चलिए ये जीमेल के जरिए एक सवाल आ रहा है। फार्मर सुसाइड्स आर रिलेटेड टू डेथ, हाउ टू इंश्योर दैट द रिकवरी ऑफ ड्यूज अंडर KCC एग्रीवेट्स डू नॉट एग्रीवेट द प्रॉब्लम, शायद ये जानना चाह रहे हैं गोयल साहब। उसमें देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर, क्योंकि हम अभी KCC की बात कर रहे हैं तो उसमें, और ख़ासकर जो लोन 3 लाख तक है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम है। लेकिन फार्मर सुसाइड जो है उसके कारण कई हैं, उसमें लोन भी हैं और उसका और जो लोन लेते हैं उसके साथ उनकी जो पैदावार है वो बढ़ने, खासकर वेस्टर्न महाराष्ट्र है। इस प्रॉब्लम को रोकने में ये सहायक साबित हो सकता है कि आप मनी लेंडर के पास ना जाएं। अगर आप 4% पे आपको KCC के जरिए लोन मिल रहा है, शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन, तो उससे बढ़िया कोई साधन हो नहीं सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या जानना चाह रहे हैं हमारे दोस्त इस कार्यक्रम में किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए। अगला सवाल भी ट्विटर के जरिए ही आया है। अगर कोई टैक्स पेयर है, गवर्नमेंट जॉब में है और उसके पास फार्म लैंड भी है, तो क्या वो KCC के लिए एलिजिबल है? क्या कोई इनकम लिमिट भी है जो रेस्ट्रिक्ट करती है इस योजना का लाभ उठाने में? रामेंद्र प्रसाद जी। देखिए, इंटरेस्ट, इसमें इनकम जो है, इनकम लिमिट का कोई मतलब नहीं है इसमें। खाली हमारा हालांकि जो ध्यान है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान, खासकर छोटे किसान हैं, वो उससे जुड़ें। और अगर उनके अपने लैंड है और उनके नाम से है, तो कोई भी किसान जो, और या फिर कोई भी व्यक्ति जो खेती करता हो, तो वो बैंक से जुड़ सकता है, वो KCC के माध्यम से लोन ले सकते हैं। Well, we're getting another question also. Let's have a look at that question too. What is the question related on Kisan Credit Card? And it's on Twitter, sir. And the question is, can farmer apply for KCC any time in a year, or is there any particular TAT? It is by Mahesh Patil. No, he can apply for, depending upon his agriculture production, productivity, and the season for which he is going to take the agriculture production. A farmer perhaps would be the best person to judge when he would need a loan. But if since a majority of farming in India starts with the Kharif crop, in the Kharif season, so I suppose that would be the right time. It actually all depends upon the production cycle of the crop that a farmer needs to produce. बन साहब, मैं एज्यूम करता हूँ कि इस कार्यक्रम को लाखों लोगों ने देखा होगा, और अगर अब कोई ये समझना चाहे कि चूंकि वो किसान क्रेडिट कार्ड, आपने इसी प्रोग्राम में कहा कि अगर किसी के पास KCC है तो उसको ऑटोमेटिकली फसल बीमा जो योजना है उसका लाभ मिलेगा, तो अगर कोई चाहता है कि KCC का लाभ उठाए या किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए, शुरुआत में इसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, कैसे अप्रोच करें? देखिए, कोई भी या तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होते हैं हर एक राज्य सरकार के, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर होता है, डिपेंड करता है किससे, तो या तो सीरियल क्रॉप करना चाहता है या हॉर्टिकल्चर क्रॉप, या तो उनसे ऑफिस में जाके वो किसान अपने KCC के फॉर्म भर सकता है, या फिर कोई भी बैंक हो, चाहे वाणिज्यिक बैंक हो, चाहे कमर्शियल बैंक हो, या RRB हो, रीजनल रूरल बैंक जिसे कहते हैं, या कोऑपरेटिव बैंक्स हो, या पब्लिक उनकी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इनसे जुड़ के किसी भी जाके
बैंक के दफ्तर में जाके वो केसीसी के लिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। और उसमें जैसे ये कहा कि एक लिमिट जो है अब इतनी आसान बना दी गई है भारत सरकार द्वारा, और कि उसमें एक बार में जब वो फॉर्म भरेंगे तो 5 साल के लिए उनकी लिमिट उसमें बन जाती है। और उसमें जैसे भी कहा कि जो क्रॉप की जो लोन अमाउंट है वो किस तरह से डिसाइड होगा, वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी होती है जो कि स्केल ऑफ फाइनेंस डिसाइड करता है हर एक क्रॉप के लिए, और कितनी इसकी लैंड एरिया है, और उसमें उससे जितना उसका लैंड एरिया है, जितना क्रॉप वो ग्रो कर रहा है, वो उसके स्केल ऑफ फाइनेंस के मुताबिक, और साथ में 10% जो है उसका कंजम्पशन लोन के लिए भी ध्यान दिया जाता है, और उसके लिए बाकी ज़रूरतों के लिए, और 20% जो है उनके एग्रीकल्चर एसेट्स हैं उनके रख रखाव के लिए भी। उस तरह का एक लिमिट बनती है पहले साल में। उसके बाद हर एक साल उसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर के लिए उसमें एक तरह से 10% का कीपिंग व्यू द इन्फ्लेशन एंड द राइजिंग कॉस्ट, उसमें 10% की उसमें को इंक्रीज़ दिया जाता है। तो ये मान के चलिए कि पूरे 5 साल के एंड तक जितना भी ये एक स्केल बनता है वो एक तरह से उनकी लिमिट मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट कहते हैं, वो एक किसान को उपलब्ध हो जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भास्कर पंत साहब इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो किसान क्रेडिट कार्ड केवल एक योजना नहीं है, एक पूरा पैकेज है, और इस पूरे पैकेज को आप एक टोटलिटी में अगर देखें तो आपको ज़्यादा बेहतर फ़ायदे मिल सकते हैं। तो फिलहाल एक इकॉनमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते कुछ नए टॉपिक्स, कुछ नए स्कीम्स और नए विशेषज्ञों के साथ आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।